Hello, welcome back to my YouTube channel. I hope you're all doing amazing. I'm back here again with a story time with all of you. This is going to be a horror story time. This is something that happened with me when I was in my sixth grade. And this was the first and I hope the last time I came face off with a supernatural entity. And I 200% know this is a supernatural entity. This is going to be a very spooky. Oh my god, did I see something? Uh, I'm scared. Okay. This is going to be the very spooky story that I'm going to narrate. I don't have answers to a lot of questions in this story, but let's get started. And before that, go grab your Maggie, popcorn, whatever you want to eat. This is going to get very interesting. Let's start. So, this is what I have to give you some background before I start the story, okay? Before I narrate the incident that happened with me. So, I was born in Pondicherry, which is a very small town in India, and we speak Tamil, okay? I was born in a very humble background. My mother and father were very struggling financially, and we were trying to figure out how we want to make progress in our life. I have a 6 years younger brother, meaning that he was very small when this incident happened. Anyways, we were struggling a lot in Pondicherry, and then my father ended up applying for jobs, and then he went to Hyderabad, which is like 8 hours of train distance from Pondicherry, and at that time it's a big deal to go into a different state. Okay, so my father initially moved to Hyderabad. He was able to crack the interview and he was able to get the job. And then he told us that he's going to take at least 3 months to find a house and settle down and then call us back. And I was finishing my school there. I was in my fourth or fifth grade. I don't remember exactly, but I was finishing my school. There was exams going on, and my father was like, "Okay, this is a perfect time. अभी आप लोग एग्जाम्स वगैरह लिख दो." लाइक मेरा भाई तो आई थिंक किंडरगार्टन में था, पता नहीं. So it was like I'm finishing my exams and then I move to Hyderabad during my summer holidays, and then I joined the new school there. So that's how it was. So then, okay, also a little bit of background. We were struggling financially so much. So at that point, we were literally living in a झोपड़ी. ओके, इससे झोपड़ी भी ठीक था हमको. हैदराबाद जैसे ही हम लोग आ रहे थे, हमको लगा कि झोपड़ी में भी रह लेंगे, वो तो ठीक ही है. लेकिन अगर झोपड़ी से कुछ ऊपर है, ठीक है, उस वो तो बहुत ही अच्छी है. हम लोग कुछ और एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे. जैसे हम लोग हैदराबाद आए, हम मेरे पापा ने हमको ना एक वाइट एम्बेसडर से पिक किया. ही एक्चुअली रिक्वेस्टेड इन हिज ऑफिस बिकॉज वी वर कमिंग एंड देयर वाज सो मच लगेज. ही आस्क्ड देम टू pick us up, and which we were very very grateful for. And that was the first time I ever sat in a car, and I still remember that feeling. So and it was quite a lot of distance traveling from the train station to the house. Okay, and we used to see a lot of jhopadis on the way, and I used to think that ये घर है क्या, ये घर है क्या, इतना दूर क्यों है. और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि wow, this is a new city altogether. और हम लोग जैसे ये घर पहुंचे, ये बहुत ही बड़ा घर के सामने जाके ये गाड़ी रुकी. और अभी के लिए वो बहुत छोटा घर होगा, लेकिन वो टाइम के लिए बहुत ही बड़ा था, और वो बहुत अंडर डेवलप्ड एरिया था. तो एक घर के आसपास देयर वाज नो. ओ माय गॉड. ओके, I just saw a light there and I got freaked out. But that was just a vehicle passing by. ओके, एनीवेज, तो ये घर जो भी है अभी के लिए बहुत ही छोटा है, तब के लिए बहुत ही बड़ा था. तो वो कॉम्पाउंड वॉल है, उसका गेट्स है, लाइक वगैरह वगैरह. सो इट्स अ प्रॉपर न्यू बिल्ट हाउस, एंड दैट एरिया वॉज वेरी अंडर डेवलप्ड. सो देर आर नॉट लॉट ऑफ हाउसेस. सो देर वॉज लाइक 4 प्लॉट छोड़ के दूसरा घर, ऐसा टाइप. और ये घर में जैसे हम लोग उतरे, लैंडलॉर्ड्स वो घर के पीछे ही रहते हैं. तो एक ही कॉम्पाउंड वॉल के अंदर एक बड़ा सा ऐसा घर है, जो लाइक 2 घर है इसमें अटैच्ड, एंड देन कॉम्पाउंड वॉल है. ओके, अभी जो पीछे वाला घर है वो थोड़ा सा छोटा है सामने वाले घर से. तो पीछे वाले घर में लैंडलॉर्ड्स रहते हैं, वो आंटी अंकल, उनके मदर इन लॉ और उनके 2 बड़े बड़े बेटे. अभी 5 लोग वो घर में रहते हैं, लेकिन उनका एक बेटा
बाहर रहता था, लाइक क्योंकि वो आर्मी में काम करता था तो वो चले जाता था। चलो, तो 4 लोग बड़े लोग रहते थे। और ये जो घर ये लोग रेंट पे दिए वो भी ज़्यादा एक्सपेंसिव कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अगेन अंडर डेवलप्ड एरिया है, तो उतना भी कुछ हम लोग अफोर्ड कर पाए। हम लोग झोपड़ी में रहते थे भाई, तो अफोर्ड कर रहे थे, तो बहुत ही चीप था हमारे लिए। जैसे ही वो घर एंटर हुआ है, तो वो घर में छोटा सा एक रूम है, जैसे ही एंटर करोगे वो छोटा सोफा वगैरह जहाँ पे डालते हो, फिर एक बड़ा हॉल है जहाँ पे टीवी सोफा बड़े बड़े सोफे रख सकते हो, फिर एक बेडरूम है, एक किचन है, ठीक है। एक ही बेडरूम का हाउस है, बट इट वॉज क्वाइट अ बिग हाउस। एंड सेम रेप्लिका है लैंडलॉर्ड्स का घर, लेकिन वो छोटे वर्जन का। अभी हम लोगों ने कभी उनको ये नहीं पूछा कि आप लोग हमको बड़ा घर देके छोटा घर आपने क्यों लिया, या मेरे मम्मी पापा ने पूछा होगा, मुझे नहीं पता था, मेरे को उतना दिमाग नहीं था, मैं सोच भी नहीं रही हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि पहली बार इतना बड़ा जगह देखा। मैं तो स्किपिंग खेल रही थी, इतनी खुशी से स्किपिंग। और हमारे घर में ना कोई सामान नहीं रहता था, तो एको साउंड आती थी। हमारे पास ना सोफा थी, ना टीवी था, ना बेड थे, हम लोग नीचे ही सोते थे। तो उस किचन में थोड़े सामान रहते थे, बस उतना ही। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बहुत खुश थी, लेकिन वहाँ पे बिकॉज मेरे को ना लोग भी अच्छे थे, लैंडलॉर्ड भी बहुत ही अच्छे थे। तो वो जो आंटी है वो तो मेरे से बहुत ही क्लोज है, तो मैं उनके साथ रहती थी हमेशा। तो उनके घर में जाके बैठ जाती थी, वो खाना बना रहे किचन में बैठी रहती थी, उनके साथ गप्पे लगाती थी, उनके टीवी देखती थी, यही चलता था। तो मेरे को बहुत मज़ा आता था वो घर में। अभी मैं आई यूज टू गो एंड सिट इन देयर हाउस एंड वॉच टीवी, जो भी है वो सब कर रही हूँ। और उनके घर में एक लिटरली फैमिली मेम्बर के जैसे हम लोग बहुत ही क्लोज हो गए। अभी क्या हो गया, 1 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ वो घर में। एटलीस्ट मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, मेरे मम्मी पापा के साथ पता नहीं क्या हुआ। हुआ भी होगा, वो लोगों ने बताया नहीं होगा, मुझे नहीं पता। मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ वो घर में, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और मेरा भाई तो बहुत ही छोटा था, तो हम लोग खेलते थे, मज़े कर रहे हैं वगैरह वगैरह। अभी ना ये हमारे जो लैंडलॉर्ड है उनके घर में एक लड़की आती थी, उसका नाम रखेंगे चलो श्रीनिधि, ठीक है। वो लड़की आती थी, और वो लड़की मेरे से 2-3 साल बड़ी है। लेकिन मुझे मज़ा आता था, लाइक पहली बार मैं किसी लड़की के साथ खेल रही हूँ। तो मेरी कज़न वज़न है, लेकिन मतलब ऐसा कोई लड़की के साथ मैंने खेला नहीं कभी। तो मेरे को जब भी वो आती थी मैं लुक फॉरवर्ड करती थी उसके आने का। तो लेकिन वो बहुत रेगुलरली नहीं आती थी, कभी कभी आ गई, वीकेंड्स में आती है, उसके पापा लेके आते हैं। तो हम लोग खेलते थे जब भी। और मैं मोस्टली तो उनके घर में रहती थी, तो अगर वो आई तो मेरे को तो पता ही चल जाता, बिकॉज मैं लिटरली सुबह से लेकर रात तक उनके घर में रहती थी। और मेरे घर में सिर्फ सोने के लिए आती थी, क्योंकि मेरे घर में कुछ भी नहीं है, टीवी भी मैं उनके घर में देखती थी, ना एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं उनके साथ ही गप्पे लगाती रहती हूँ। तो ये रहता था मेरा रूटीन, ठीक है। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो समर के टाइम था, बहुत ही गर्मी था। तो वो टाइम पे यूजुअली वहाँ पे ना बहुत सारे लोग छत पे सो जाते हैं, लेकिन मेरा अलाउड नहीं था, मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं अलाउ करते थे। अभी मुझे पता है क्यों नहीं करते हैं। तब मैं थोड़ा सा जिद करती थी, लेकिन मैं मेरे मम्मी पापा के साथ ही सोना पसंद करूँगी, और मेरा भाई के साथ। तो मैं कभी ऊपर जाके नहीं सोती थी, तो ये लोग सोते थे ऊपर, वो वुडन का जो बेड रहता था वो डाल के सो जाते थे ऊपर। और हम लोग क्या करते थे, हमारा जो बेडरूम है उसके ऑपोजिट विंडोज रहता था, तो वो विंडोज को खोल देते थे, और हम लोग वी यूज टू स्लीप देयर, बिकॉज इट वॉज सो हॉट, वी हैव टू कीप द विंडोज ओपन ड्यूरिंग समर्स। Anyways, this was the routine, and we sleep on the floor, okay. And we used to have this steel pot which is filled with water, and we used to keep a steel plate on top of it, and then a tumbler, and we used to keep it near our head and go to sleep. And it was late at night. I don't know the time because I was not able to see the I didn't have a clock, and we didn't have a clock anyway, so I couldn't see the time. But I knew that it was late because I slept for a while. I woke up and I was awake, like properly awake. So I'll tell you why I was awake. Okay, so I have this secret thing that I used to do when there is no one, and especially when my parents are not watching, because my parents scold me if I do that. This steel pot is not so big. This is like you can literally lift with your hand, and I love drinking the water from the pot itself. So when I looked at my parents, they were sleeping and they were not seeing me, तो मुझे लगा कि मैं पीऊँगी। तो मैं बहुत इतनी अवेक थी कि मैं ये सब कर रही हूँ और मैं पानी पी रही हूँ। जैसे मैंने पानी पीना शुरू किया और मैं ऐसे ही नीचे करी, श्रीनिधि विंडो के पीछे खड़ी थी, और विंडो खुला है, मैं देख रही हूँ उसको, और मेरी
फट के हाथ में आ गई, लिटरली। मेरे को इतना डर लगा ये चीज़ का। नहीं, मैं ये नहीं सोच रही कुछ और, मैं ये सोच रही हूँ, मैं इतनी एम्बैरेस थी कि उसने मेरे को स्टील के पॉट से पानी पीते हुए देख लिया, और मेरे को इतना एम्बैरेसमेंट हो रहा है। मैं वो सब कुछ और सोच ही नहीं रही हूँ। फिर मैंने नॉर्मल, लाइक, मेरे को इतना एम्बैरेसमेंट हो गया, मेरे को पता ही नहीं मैं क्या कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, फिर से पानी पीना शुरू कर दिया, बिकॉज भाई चले जा, मेरे को देख ही मत, तू भाग जा। मतलब अगर तू कुछ वो लड़की नहीं है तो वैनिश हो जा, लाइक ये सोच के। फिर मैं नीचे कर रही हूँ, वो वहीं पे खड़ी है, वो हंस रही है, और मेरे को इतना एम्बैरस हो गया। और फिर उसने बोला, वो तो उसने लाइट ही ले लिया, उसने बोला चल खेलने जाएंगे, तेलुगु में, चलो खेलने जाएंगे, तो चलो खेलने जाएंगे ऐसा। एंड मैं तभी भी ये नहीं सोच रही हूँ ये कुछ और है, मेरे को पता था ये श्रीनिधि है, वो ही लड़की है। मैं बोल रही हूँ नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ, मेरे मम्मी पापा नहीं छोड़ेंगे मेरे को। और मैं सोच भी रही हूँ डोर खोल के जाऊँगी, लेकिन डोर ऊपर खोलना पड़ेगा, और मेरा हाइट नहीं है, तो मेरे को मम्मी पापा को उठाना पड़ेगा, और वो लोग मेरे को जाने नहीं देंगे। फिर मैंने बोला मैं नहीं आ रही हूँ, मैं नहीं आ रही हूँ। मैं जाके फिर वापस, मेरे को याद है, मैं ब्लैंकेट डाल के डरी कुछ नहीं, मैं सो गई। मैं इतनी वरीड हूँ कि उसने मेरे को देख लिया पानी पीते हुए। एनीवेज शी wasn't bothered about it because she started calling me to play. I slept, and then morning I woke up. I went to their house because I wanted to play with her, because I didn't play with her in the night. I went to her house and I said, Srinidhi kaha hai? And the auntie said, वो नहीं आई है. Then I said, but she came in the night. She said, no, she hasn't been here for 2 weeks. And if वो आती थी तो तुमको पहले पता रहता था. लाइक वो नहीं आई है 2 हफ्ते के, 2 हफ्ते के बाद आएगी वो, अभी नहीं आई है, उसका एग्जाम चल रहा है. And then I thought she was lying, like she's lying. I was like, no, she's lying, she's playing with me. And then I came and asked my mother. My mother said the same thing. I asked every single person in that house, and everyone said, no, what's wrong with you? And I was like, oh my god. Now, like literally, मुझे goosebumps आ रहे हैं, पता नहीं. Every time I narrate this story, like, oh my god, I just cannot believe. And I'm so grateful that I did not go near the window or step out or do anything other than just going back to sleep. तो चलो, ये मुझे लग रहा था कि क्या ही हो रहा है, मैं पागल हो जा रही हूँ। और 2 हफ्ते के बाद वो लड़की आई थी, और वो लड़की को भी मैंने पूछा कि क्या तू उस दिन रात को आई थी, मेरे को बुला रही थी? उसने बोला नहीं. And I was not dreaming, I was not hallucinating. I knew that girl was there. I don't know what it was. I don't know why it was calling me. I don't know. I don't have answers to those. But I knew she was there and she was calling me. And that's my story. And this is the first time I came across supernatural entity. And I am so, like, literally, I don't know if you're able to see it, but I'm so scared. But I hope you enjoyed the story. If Let me know what you think about it in the comments, and I'll see you in the next video. Bye.